गाइज अब जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है तो मैं एक गाना गाना चाहूंगा। गा सागर की मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकत। अनिल कुमार सर जो हमारे थे। दिग्गज मैंने दिग्गज है तो वो बहुत बड़े। मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। So your name is Bihar King. कहाँ? Yes, my Bihar King. So hi guys and welcome to another episode of the Wine and Poker podcast, All Things B School. I am Shikhar Prasad. We have with us Ayush Bhatia, who you already know, and Tushar, who you also already know. But on the screen, there are two more people, very near and dear friend of ours. There's Mr. Rachit Jain, who is currently at Goldman Sachs. So all the finance guys, be excited. आज उनके बारे में जानेंगे. And we also have with us Ayushi Srivastava, who is at Aditya Birla Capital. Hi Ayushi, how are you doing? Fine, yeah, fine. Cool. So yaar, I think it's very obvious from the kind of cohort of guests we have कि आज finance की बातें होने वाली है. But since we all are ISCOM people, so we wanted to talk about why finance is basically fucked, which is the title of the video. Fuck. In term, not entirely, but in terms of case competition, थोड़ा सा scene tight है. Finance की बात है. So फाइनेंस में केस कॉम नहीं है क्या? sad but true. है यार, मतलब कि नहीं है. यार मतलब जब when you are in IMT, which is a tier 2 college and known for marketing, तो you can understand कि कितना sad है finance के लिए. So या तो मार्केटिंग में भी ज्यादा नहीं है. जीएसके है, फ्लिपकार्ट है, एयर इंडिया है, पीएनजी, नेस्ले. फाइनेंस में कितने आयुष? कितनी तो कंपनियां नहीं आती हमारे कॉलेज शायद. Oh, but on a serious note, I think it is a problem in the MBA ecosystem. और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे. Today we'll discuss why there is a lack of competitions in finance MBA, and is there something that can be done about it? What is the reason? First, we want to understand कि क्यों नहीं है from you two, और फिर is there something that we can do about it, and how was your experience as a student when did you feel at one point कि lack है थोड़ा सा case comms का? I think always in the back of my mind I had this assurance कि यार these are the X number of case comms, be it GSK, Flipkart, Air India, TAS, that will open up. So of course you're not sure कि you will convert one of them, but there's that cushion in your head कि mentally you are not sure कि फाइनल सी है. अब तो मेरा नवंबर में जो शॉर्टलिस्ट आएगी और वहां मैं ऑफिस में बैठ के जो इंटरव्यू दूंगा उसी पे मेरा करियर डिसाइड होगा. So that mental Shikhar, yeah, basically you are saying कि you were not fucked. yes, As our correct. topic I is think finance is fucked. was fucked. Yes. This was something You जो wanted कि it. already at the back of our minds we already had it, because we were joining the college which was known for marketing since like 30 Yeah. 40 years. yeah. So this was initially sad only, but there were few brands which was the major reason why me and I think Ayushi also decided to take a final call at IMT. So जैसे तुम लोग बता रहे हो कि obviously the number of case competitions are less, but what I think is from a different perspective कि the kind of case studies that you have, so those are real world problems and require real solutions. But for a finance company to leak out its original or internal data for a solution, it's not possible. And also creating or mimicking a real world problem on the same day doesn't make any sense. Because if you cannot implement it directly, then the case competition itself is not worth it. So maybe that is the reason that the companies don't directly prefer going for case competitions and directly go for a one-to-one PI and everything. Okay. Yeah. So I think in my case, I already got the PPO in the month of June only. तो मैं मतलब मुझे नहीं लगता मैं किसी पोजीशन में हूँ कि मैं complain करूँ कि मेरे पास केस कॉम नहीं था और ऐसा कुछ करके. But you guys were my motivation, you know. I saw you people and I was so motivated to do a case com in spite of having a PPO, that I tried my hand in Accenture first of all. Then I participated in TAS also.
because there were no case comps Hmm. for finance. So I had to participate in these ones. Hmm. And also, जैसा रचित ने बोला कि sometimes it's difficult for finance companies to, leak their data. And एक आपको एक real world problem वो दे. And इसके अलावा I feel कि marketing में, I feel that there can be more creative solutions. Finance में क्या होता है कि जैसे बहुत ही data heavy solution होता है. इन्वॉल्व बेसिकली कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मॉडल्स होते हैं और बहुत ही टेक्निकल एक्सपर्टीज आपको शो करनी पड़ती है. आई थिंक विच इज नॉट पॉसिबल इन दैट टाइम फ्रेम which usually Cascom give. Like for example, if I remember, I recall that there was a company, I will not name the company, but उन्होंने आई थिंक पहली बार IMT में अपना केसकॉम खोला था एंड इट वाज स्पेसिफिकली फॉर फाइनेंस. बट उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, जो सॉल्यूशन उनको चाहिए था, वो इतना कॉम्प्लेक्स था कि वी ऑल रियलाइज्ड कि 3 दिन के टाइम में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. सो आई थिंक ले दिस सकते हैं कैन नाम. हाँ, you can take Indigo it. Edge. I think नाम ले सकते हैं. Indigo Edge. Edge. Yes, it was पता है Indigo पता है. ये कट जाएगा वो. Are you comedy me? It is a tough course, dude. Finance. हाँ, Yeah, मतलब also our course is so hard. I मतलब actually. मुझे Yeah, तो dude. अब ट्राई तो आप करोगे कि मोर एंड मोर कंपनीज डू कम फॉर केस कॉम्पिटिशंस. तो व्हेन यू इवेंचुअली टॉक टू द एचआरस, तो उनका क्या वो रहता है कि भाई वी कांट कम टू योर कॉलेजेस के बहुत ही ज्यादा लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज है. अब मान लो उनकी रिक्वायरमेंट है 20 थ्रू आउट इंडिया. तो इफ यू स्टार्ट बाय A, B, C, डू यू इवन थिंक कि वो IMT तक पहुंच पाएगा कोई भी? हाँ. yeah. तो वो Exactly. ABCLK आए, दैट्स इट. Very, very rightly pointed out by Rachit कि हम hierarchy में कहीं नहीं है. But that is why I think case competitions are that important for finance Exactly. also, so Yeah. that Yes. we can break that fucking hierarchy. We have gone out there and won in the national stages where IIM Ahmedabad, where Bangalore, and where Calcutta has competed. True. But Very we have defeated them. So we have that caliber. Finance also has that caliber in the V school fraternity of the secondary schools. So we should get that opportunity, and you should also get the same opportunity that a marketing student is getting. मोस्टली फॉर द नेम सेक ना आप एलिजिबल कर देते हो बस फाइनेंस. हाँ. बट यू इवेंचुअली नो correct. के Inclusivity. आगे जाते जाते ना Inclusivity कट ही जाना है है. फाइनेंस. हाँ, आप उनकी प्रेफरेंस नहीं हो बेसिकली. हाँ, मार्केटिंग इज बस देयर. एक ब्रॉडर उस पे प्लेटफॉर्म पे दिखने के लिए आप एलिजिबल कर देते हो ताकि ज्यादा पार्टिसिपेशन आ जाए आपके पास. बट यू आल्सो नो के रचित तो आगे सारे जाके हमको cheat हटाना codes ही है. बता रहे हैं. रचित इज टेलिंग ये ऑल दिल द से cheat codes now. दिल से निकल रहा है, ये दिल से मैं बता रहा हूँ अभी. So, yes. Guys, I think we had a wonderful discussion on the lack of case comps, and I think everyone, all the finance students who are watching this, बहुत hard relate कर रहे होंगे कि guys, this is my story which is being discussed here on the podcast. I'm sure. हाँ, I'm sure. नहीं यार. नहीं यार, ऐसा नहीं है. It is, I think, ये सिर्फ IMT वाले हैं. or at least all the tier 2 colleges. I think it's common across all tier Yeah, 2. I mean, So I think now moving on, I think we've also prepared a grid. Yeah. This is the data of marketing's FMCG's top most desirable companies by the students. And similarly, we have the data for top finance companies desired by the students. Check Yeah, it and this go to is- the next. So guys, the most biggest difference in between these two lists are that FMCG ki all 5 companies have their case comps and they are rolling it out each year. बट BFSI की एक भी कंपनी ने आज तक कभी केस कॉम रिलीज नहीं किया है, ना लॉन्च किया है कुछ एनी सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल असेसमेंट रादर देन कॉलेज प्लेसमेंट्स. I see this data. Hmm. And if I compare BFSI की कंपनी और मार्केटिंग की कंपनी, तो मेरे हिसाब से यार इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं. पहला रीजन तो ये होता है कि BFSI की जो कंपनीज होती हैं, दे यूजुअली हैव लाइक वेरी कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस, कंप्लायंस इश्यूज होते हैं, डेटा सिक्योरिटी होती है उनके पास इशू. ठीक है. अब दूसरा रीजन जो मैंने पहले ही मेंशन किया था कि यूजुअली क्या होता है ना कि इट इज सो डेटा ड्रिवन एंड इतना हेवी उसमें डेटा कंटेंट होता है कि इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में और इतने कम स्लाइड्स में टू प्रेजेंट योर पूरा एनालिसिस ऑफ द केस, इट्स वेरी डिफिकल्ट. ओके. एंड मतलब अनदर रीजन वुड बी कि मतलब जैसा रचित ने मेंशन किया था कि बिना प्राइवेसी इशू के वो रिलीज करना ऐसा केस कॉम, उनको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देना, आई थिंक इट्स डिफिकल्ट. सो आई थिंक इन माय ओपिनियन दीज 3 मोटा मेजर रीजंस यही होंगे इन माय ओपिनियन. आई फील दैट.
working on a case com, I think that person is somewhere or the other already working with the company, right? Because Yeah, वो yeah. उनकी I think it's a company half serve कर रहा है. internship. And Yeah. It's a yes, half and internship. also that person is so much involved in the process for like Hmm. months, sometimes 2 months, 2 months. if 2 I'm months. not Yeah, wrong. yeah. Yes. हमने प्रोज डिस्कस कर लिए हैं, तो ऐसे डिस्कस करते करते एक चीज आ रही है दिमाग में हाँ. कि केस कंपटीशन में क्या होता है ना, यू प्रेजेंट योर प्रिपेयर्ड सोल्यूशन, Okay. जिसमें आपने Hmm. असिस्टेंस भी ली होगी, Hmm. बट टू माय Okay. नॉलेज, मतलब आई बिलीव के Hmm. फाइनेंस कंपनीज रिक्वायर मोर ऑन द फीट नॉलेज. Okay. ठीक है, Okay. कि इफ आई Spontaneity. प्रेजेंट द Spontaneity. यस स्पॉन्टेनिटी, तो Hmm. अगर मैं वो हाँ. सेम तेरे को इंस्टेंट देता हूँ, तो देन व्हाट इज योर रिएक्शन अभी की अभी, हाँ. रादर देन मैं तेरे को Okay. एक हफ्ता दे रहा हूँ टू प्रिपेयर समथिंग एंड देन प्रेजेंट इट टू मी. Yeah. True. Okay, so on this topic only, अब हमने डिस्कस कर लिया है कि जैसे क्या क्यों नहीं, क्या सैड पार्ट है कि फाइनेंस में बिल्कुल केस कॉम्स नहीं आ रहे, एंड रीजंस भी बहुत सारे हमको मिल गए. तो उसमें तुम दोनों आईएमटी की वन ऑफ द टॉप फाइनेंस कंपनीज में प्लेस्ड हो, एक गोल्डमैन और एक एबीसी. तो अब तुम्हें क्या लगता है कि आयुषी ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप एंड रचित ड्यूरिंग योर इंटरव्यूज Hmm. कि ऐसी क्या क्वालिटीज तुम्हारी चेक हुई हैं जो कि केस कॉम में भी सिमिलर तरीके से वो क्वालिटीज चेक हो सकती है, एंड आगे जाके केस कंपटीशन कुड बी अ रेगुलर पार्ट ऑफ फाइनेंस स्टूडेंट्स लाइफ. यार यार, आयुषी, yeah, यू वांट टू sure. स्टार्ट? Ayushi, हाँ. No, no, no. अच्छा ठीक है आयुषी. Should I? Chivalry हाँ, पहले तो आप मतलब लखनऊ में है क्या? Sponsored, guys. हाँ, तो यार मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से, तो व्हाट आई कुड जज इज के दे लुक फॉर मेजरली योर बॉडी लैंग्वेज, हाउ प्रेजेंटेबल यू आर, because ultimately you have to face their big shot clients, True. so they need someone who is, you know, capable of that. हाँ, has that presence. Yes, क्योंकि आप खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, यू हैव अ नेम बिहाइंड यू जिसको आप रिप्रेजेंट करने जाओगे जब आप क्लाइंट से मिल रहे हो. तो दे चेक योर बॉडी लैंग्वेज, द वे यू टॉक, द वे यू greet, your aura within that PI room. This is more valuable to them. Okay. तो हाँ, रचित अच्छा. इस पे एक चीज ऐड करने में तो इंटरव्यू रूम में जैसे कभी कभी ऑनलाइन हो जाते हैं इंटरव्यूज, कभी कभी सामने फेस टू फेस रहते हैं, बट इफ यू आर गोइंग फॉर अ नेशनल फाइनल्स, तो is it not a better way to judge a person's capabilities to speak in front of strangers when he's standing in front of 200 odd people and like giving a presentation? So won't it be the same thing? तो अब Hmm. मेरा जो इंटरव्यू हुआ था एबीसी के लिए, तो आई थिंक दीज डेज कंपनीज चेक करते हैं कि आप कल्चरली फिट हो या नहीं हो उनकी कंपनी में. आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज डू दैट. तो आई थिंक सबसे पहले तो वो चेक करते हैं वो कि आप उनकी कंपनी में फिट बैठोगे या नहीं बैठोगे. देन ऑब्वियसली इट्स फाइनेंस, सो योर टेक्निकल स्किल्स डेफिनेटली, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स, योर एक्सेल स्किल्स. मतलब दिस वाज चेक्ड इन माय इंटर्नशिप बिकॉज आई हैड टू वर्क ऑन दीज स्किल सेट. मैंने आयुषी ने मेजर बात बोल दी अभी कि यार फाइनेंस कंपनीज का ना मेजर वो आपकी प्रोफाइल बेसिस पर रिलाई करते ही हैं. अगर Exactly. आप एक गुड कैंडिडेट उनकी आंखों में हो, तो आप गुड हो स्टार्टिंग से आपकी लाइफ के. आपकी 10th अच्छी, आपकी 12th अच्छी, ग्रेजुएशन अच्छी, यू मस्ट बी एन ऑलराउंडर स्टार्टिंग से ही. बट अगर केस कंपटीशन आप खोल रहे हो, देन यू हैव टू बी दैट लीनियंट के आप 60 भी 70 भी पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए अलाउ करो. तो ये आपके मे बी ओरिजिनल प्रिंसिपल से अलग जाता है, अलग जा रहा है. फाइनल्स के टाइम पे एक और चीज मुझे पता चली कि केस कंपटीशन तो चलो बहुत लेंदी प्रोसेस है एक बार के लिए. अगर हम देखें, सबसे पहला अगर बहुत छोटे में मैं बताऊं, एक राउंड जो कंपनीज कराती है वो है बिहेवियर, आपका टेस्ट, साइकोमेट्रिक बिहेवियरल टेस्ट. ठीक है, तो वाइल टॉकिंग टू एन एचआर मुझे ये पता चला कि एक बंदे को टेस्ट करवाने के लिए उनकी 400-500 रुपए समथिंग की कॉस्टिंग आ रही है. Okay. तो दैट वाज द रीजन दे वर प्लानिंग कि हम और छोटी शॉर्टलिस्ट दें ताकि जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम लगे. सो शॉकिंग. What? ठीक है, हाँ, आई वोंट नेम ऑब्वियसली, बट अगर ये चीज भी है कि आपकी कॉस्टिंग, आपको ऑब्वियसली कॉस्टिंग कम रखनी है. आपको रिक्रूटमेंट के लिए एक सेट बजट है जिससे आप एक्सीड नहीं कर सकते. तो आप ट्राई करोगे कि जो उसके अंदर अंदर में जो पॉसिबल सोल्यूशन है आप उसी से रिक्रूट कर लो, क्योंकि केस कंपटीशन करवाने में इट वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ कॉस्ट. I think we've covered the problem. I think wonderful perspectives you guys brought out. I think हमने initially जो सोचा था only we revolved around data, but I think the practical aspect of the budget constraints, which is so real, because the HR department which organizes case comps will have a budget constraint to work.
So I think Too now, real. yeah, absolutely. And to talk about some probable solutions, then maybe how, like, in our heads, do we see a way ahead how case comms, as Rachit said, there are a few companies which are planning to introduce case comms in the future for finance students. So is there a way forward? Is there a roadmap that we can build, or maybe some suggestions that we can give to companies to sort of increase the number of case comms that are there, because they are very low right now? If Yeah, anyone wants to- Shikhar, I'll I try and take this question. yeah. Uh, So I feel कि what companies can do is कि जैसे one of the biggest issues with launching a case competition is कि recent जो latest data है वो leak नहीं कर सकते वो लोग, Okay, yeah. ठीक है ना? Hmm. So what they can do is that second is time bound, बहुत छोटे छोटे मतलब 3 दिन में या 7 दिन में अगर सबमिशन हो रही है तो Okay. what these companies can do is launch a case com early in the timelines of PVM, Perfetti Confi Challenge, which starts in around 2nd August. Hmm. So it is way 1 month time for initial submission and 15 days for the second submission. So Hmm. there's a abundance of time to think and curate of a solution. And for the data, these can do is take legit data, the real data from the company and real problems from 1-2 years ago, which had not been made public. Oh, So okay. no one knows about these Hmm. problems. There is no data loss that will happen from their side. यार हाँ, तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए कि अगर उनको डेटा इश्यूज हैं और प्राइवेसी इश्यूज हैं और इतने कॉम्प्लेक्स मॉडल्स होते हैं तो टाइम इश्यूज हैं, तो इसके अलावा यार वो केस फॉर्म में मतलब अपनी नीड्स चेंज कर ले. मे बी दे कैन डू कि दे कैन डू इन्वेस्टर्स पिच, और मे बी दे कैन डू M&A एनालिसिस, और थिंग्स लाइक दैट, जिसमें ज्यादा डेटा इशू मतलब प्राइवेसी भी लीक नहीं हो रही है और आप टेस्ट भी कर सकते हो कि आपको क्या देखना है. मे बी दे कैन चेंज देयर ओन वे लाइक दिस. आई फील कि दिस कैन बी अ सॉल्यूशन. या फिर आपका अभी मैंने जो बताया, क्या बताया था मैंने थोड़ी देर पहले? I think, guys, we had a wonderful discussion regarding why. I think everyone would have gained a lot of insights regarding why aren't there enough case comms and what are the probable solutions. I think Ayush and Ayushi gave really insightful thoughts into moving away from data heavy case comms to maybe more theoretical case comms or changing the timelines. I think both of things, I think if any person who's who of a finance company is watching should take note. So now I think moving to a more light-hearted segment of the podcast, which we have, which is story behind the photos. We have curated a bunch of photos with Ayushi, Rachit, and all of us. And since they are here and they are a very dear friend of ours, we would like to go down the memory lane. So Rachit and Ayushi, are you guys ready? No, maybe you can take approval first. So the first photo is, oh wow, Ayushi, what is this? Do you remember this photo? What is So this? I think this is one of the most special moments of my MBA life, because this is the moment when I got to know that I have got a PPO from ABC, Wow. the first PPO in finance. So it was indeed very, very special. Yes, वो moment है जब मेरी MBA खत्म हो गई. Wow. So And when did this happen? When was this, Ayushi? I think which month? 1 year back. 1 year. Oh wow. Rachit. Not so wholesome. क्या हो रहा है यहाँ पे? Best day out of the 2 years. Luckiest day. Luckiest day. यार ये तो मतलब अपना तो फाइनल्स final वाली case है. इस दिन हाँ यही था कि पैरेलल प्रोसेस तो थी ही, अब एक साथ चल रही थी दोनों. और इतनी हिम्मत मेरे अंदर भी नहीं थी कि मैं किसी को भी टैंक कर सकूं, क्योंकि बहुत स्टार्टिंग ही थी, है ना. तो ऑब्वियसली मन में था कि गोल्डमैन ही जाना है, बट इवेंचुअली उसमें भी बेस्ट शॉट देना ही था. मे बी अगर गोल्डमैन का नहीं होता, इफ आई कुड नॉट मेक इट देयर, डेफिनेटली. तो मैं अंदर ही अंदर फिर दोनों प्रोसेस देने के बाद प्रे कर रहा था कि गोल्डमैन का पहले आ जाए, गोल्डमैन का पहले आ जाए, क्योंकि अगर उसका आ गया तो मेरे को क्योंकि मेरे को वो एक्सेप्ट करना पड़ता. हाँ वो वाला सीन था. तो पर हाँ लकीली गोल्डमैन का ही पहले आ गया, और फिर वही फाइनल उस पे क्लोज हो गया था. और उसके जस्ट 5 मिनट बाद मेपल ट्री का आया और उनका भी फिर सिलेक्शन का नाम आ गया था. But उनको बताया not today, boys. Not today. आज गोल्डमैन हो गया, मेपल ट्री नहीं Safe हो गया. Safe हो आप गया. लेट
But I think यार it's been a wonderful journey because day one से मुझे याद है जब भी हम बात करते थे कि यार डिस्कस करते थे गाइस कहाँ पे जाना है, everyone used to discuss their dream companies, और रचित का हमेशा ये था कि यार गोल्डमैन तो जाने। ओह Oh, Sugar plate. so अरे this टैस is लगा, टैस लगा, टैस लगा। enlighten so as me, what is happening? I mentioned earlier, इनिशियली कि जो हमारे यहाँ पे केस कॉम विनर्स हैं और रनर अप्स हैं इतने बड़े बड़े केस कॉम्स के, तो उनको देख के मैं बहुत ज्यादा ही मोटिवेट हो गई थी। और Okay. सिंस फाइनेंस इज फक्ड, कोई अपॉर्चुनिटी तो थी नहीं हमारे पास, तो मुझे इतना फोमो हो रहा था कि मुझे भी किसी केस कॉम में पार्ट लेना है, मुझे भी किसी केस कॉम में पार्ट लेना है। सो द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी विच आई हैड इन फ्रंट ऑफ मी वाज टैस, एंड दिस वीडियो is I think Semis. first round था। This is semis. Round 3 semis. this is semis, and हमें अपना एक वीडियो प्रपोज करना था उन्हें 1 मिनट का, नो 2 मिनट्स का, और उसमें बताना था कि हमारा आइडिया क्या है एंड एवरीथिंग, एंड दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ दैट हाँ, only, yes. मैं और लक्ष्य शूट कर रहे थे इसे, मुझे याद है। Yeah, and Lakshya और and Tushar were और उसके बाद shooting. मेरे को मेरा बनवाना है। हाँ, उसके बाद Yeah, and मेरा I बनेगा, remember हमने ऐसा हो कितना रहा है। brainstorm किया था आइडिया हाँ। पे and everything. हाँ, If you remember आयुषी, उसी दिन आयुष जीत के आया था, वो yes, सेकंड आया था उस दिन। इसी दिन हम yes, पहुंचे थे yes, वापस। it's the same day, I Oh, remember. yeah. Yes, yes, yes. और बारिश So हो it रही है, was a, आयुष बुला रहा है, हाँ हम बोल रहे कि yeah, भाई हम वीडियो बना के आ हम रहे हैं, रुक केस जा 2 कॉम कर रहे हैं, हम मिनट केस कॉम कर अभी। रहे हैं। So a very वो happy जीत day. गया वहाँ। हम बोले हाँ, केक नहीं काटने आएंगे हम, अभी हाँ, 5 केक मिनट केक नहीं काटेंगे। काफी ओवर आएंगे अभी। I think this was the fever in during our I think that Casecom run जो entire yeah, I season, think yeah. top K4 पे priority तो सबके सबको दिमाग में। फीवर, हाँ Yes. सबको फीवर चढ़ गया था K4 पे इसका हाँ। तो। टॉप प्रायोरिटी, यार। तुम थके थे, हम लोग थक गए थे भाई जब रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे थे। रोज पार्टी, रोज पार्टी, रोज रोज पार्टी। यहाँ इधर कुछ खुल नहीं रहा है, उधर पार्टी पे पार्टी हो रही पार्टी है। पे पार्टी हो रही है। बॉम्बे बॉम्बे। बॉम्बे। सॉरी गाइस, So this is such a cute picture, and this is I वेरी think क्यूट। from the best ये days मेरे of को IIT. याद है, यस। नहीं, मेरे को दिन Yes. भी याद है। Oh. मुझे क्या लगा अंकल कि जी मैं- पहचाना। What is this, पाजी? जो वीडियो देख रहा है, अगर आप IMT से, तो आपके पास ऑलरेडी आ चुकी होगी ये फोटो। तो रेगुलर डेज की तरह ही इस दिन भी हम थोड़ा हमारा मैजिक वाटर पी रहे थे, और मैं भी था। आज थोड़ा ज्यादा पी लिया था। तो फिर क्या हुआ था कि बैठे बैठे ही रूम में डिस्कशन हुआ कि भाई बाहर चलते हैं और क्लबिंग करने चलेंगे। एंड तुषार वाज ऑलरेडी आउटसाइड, Outside. वो अपने हाँ दोस्त के Delhi. घर के वहां पर था, और हमने इससे मिलने का प्लान बनाया कि भाई तेरे से मिलेंगे। हाँ। और तुषार ने हमको फोन पे बोला कि भाई अब बहुत लेट हो गया है, तो तुम लोग थोड़ा जल्दी निकलो, वरना क्या पता निकलने दे ना निकलने दे। और हमने ऐसे ही बस शेकी में इसको फोन पे बोल दिया कि भाई आज तो मिलके रहेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। तो IMT में हमारा एक कर्फ्यू रूल है which is 10 PM all gates closed, you cannot exit the campus after 10 PM, and Yeah. incidentally this call happened after 10 PM, तो हमने बोल तो दिया तो हम निकल रहे हैं कैंपस से, बट अब चलना कैसे? So me, Rachit and Lakshay, and there was Ayush Bhatia, Pranjal, everyone was there, 6-7 of us. उस समय we were in first year and we called the second year seniors of SAC, which is the Student Affairs and Welfare Council of IMT गाजियाबाद, और उन्होंने मना कर दिया हमें परमिशन देने से। IMT में जनरली गेट 1 है जहाँ से पार्सल आते हैं, गेट 2 है जहाँ से लोग एंट्री और एग्जिट करते हैं, और गेट लोग 3 है आते जहाँ हैं जहाँ फूड से। ऑर्डर आते हैं। हाँ, तो उस दिन हमने गेट 4 ढूंढा। गेट 4 ढूंढा। दिस इज द गेट 4 स्टोरी। एक साइड थी जहाँ पे दीवार बाकी जगह से थोड़ी सी नीचे थी, और वो डार्क कॉर्नर था जहाँ कैमरास नहीं थे। यही था कि 3 लोग कूद गए कॉलेज से। हम दीवार कूद गए। इनिशियली जब हम दीवार कूदने का प्लान कर रहे थे, हम गेट 4 की लोकेशन स्काउट कर रहे थे, तो हमें लगा कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट कैमरास में नहीं आने चाहिए। हमें ये रियलाइज नहीं हुआ कि कॉलेज के बाहर भी एक दुनिया है, और वहां पे भी एक स्टूडेंट अफेयर्स एंड वेलफेयर काउंसिल है जो कि पुलिस होती है, उनसे भी हमें रियलाइज नहीं हुआ। हमने अपना वादा पूरा किया, irrespective of consequences, irrespective of whatever happened. चल So with that, guys, we come to the end of a podcast. It was great catching up with you, all of you. I think irrespective of whatever has happened in placements, कितने भी केसकॉम खुले किए नहीं खुले, I think the core memories that we've lived, the Gate 4 memories, the PPOs, the Bombay parties, I think that is something जो हम हमेशा साथ लेके चलेंगे, irrespective of whatever happened in terms of monetary returns जो हमको मिले अपने MBA जर्नी से.
So wonderful catching up, and with this we come to the end of our podcast. And everyone who's watching, please like, share, and subscribe. And we come out with new episodes every Friday. So subscribe and watch out for the next episode. We'll catch you in the next one. Thank you. Bye. Bye, guys. Thanks for And watching. finance is fucked. Finance is fun.